Hello everyone. Today we will continue our fungal genus Puccinia. Our today's learning objectives are we will discuss life cycle of this pathogen on Berberis plant. Berberis is a secondary host और इसको अल्टरनेटिव होस्ट भी कहा जाता है. सो इसके ऊपर जो इस पक्सीनिया का लाइफ साइकिल है वो हम आज डिस्कस करेंगे. वी हैव डिस्कस्ड कि जो डिप्लोफेज है that is completed on the primary host which is wheat plant और जो हैप्लोफेज है वो कंप्लीट होता है अल्टरनेटिव होस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. Next we will discuss the stages of this pathogenic genus on Berberis plant which is a secondary host or alternative host. So जो stage 4 है, अभी तक हमने 3 stages पढ़ी. First was uridinial stage, then teleteal stage and basidial stage, and the fourth one is the stage on Berberis plant. इस स्टेज को कहा जाता है पिकनीडियल स्टेज और स्पर्मोगोनियल स्टेज. दैट विल डिस्कस इन डिटेल. सो ऑन द लीफ ऑफ बर्बेरी प्लांट जो बेसिडियोस्पोर्स हमने पढ़े थे, 4 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. 2 आर ऑफ प्लस स्ट्रेन and 2 are of minus strain. They are formed as a result of meiosis. So haploid spores हैं ये basidiospores. ये एयर के थ्रू जाते हैं फुट हिल्स पे. वहाँ पे बर्बेरिस प्लांट होता है जो कि एक शबी प्लांट है. दैट विल सी इन दिस स्लाइड लेटर ऑन. और इसके अपर लीफ सरफेस पे ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल एंड फॉर्म द जर्म ट्यूब and grows extensively and forming haploid septate uninucleate mycelium. Because the spore is haploid, so जो ये mycelium भी बनता है इसकी germination से, that is also haploid. So this is the plant. It is the most common shrubby plant with spines or we can say thorns on this branch. इसके जो leaf surfaces होते हैं ये भी spiny होते हैं, dentations होती हैं इसमें. Or this is the normal picture and this picture shows the symptom of this infection. So इसके upper surface पे हमें ये patches दिखाई देते हैं और ये जो patches बनते हैं जब extensively growth show करता है ये haplophase on the upper leaf surface. और ये जो structures हैं these are pycnidia. On germination of basidiospores of both strain on upper surface of Berberis leaf, जो दोनों तरह के माइसीलियम हैं दैट इज़ ऑफ प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, वो दोनों ही माइसीलियम एक ही लीफ के सरफेस पे ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली एंड दे प्रोड्यूसेस नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ पिकनीडियल स्टेज ऑन अपर सरफेस. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले. और एसिडियल स्टेज ऑन द लोअर सरफेस दैट वी विल know after discussing this lecture. So this is the upper leaf surface of Berberis. ये जो हमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, these are the stage that is the pycnidial stage. और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, so this cup shaped structure on upper leaf surface, ये जो upper leaf surface पे cup shaped structure दिखाई दे रहे हैं, this is the pycnidial stage. और जो inverted cup shape stage है on lower leaf surface, this is the ascidial stage. So that is on the lower leaf surface. और जो pycnidial stage है ये होती है upper leaf surface पे. जो haplomycelium है that is formed as a result of germination of basidiospores on upper leaf surface, ये बनाता है dense mat of hyphae on the upper epidermis.
which later organizes to form the pycnidial of both the strain, जो बाद में pycnidium बनाती है. pycnidium के अंदर नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज pycnidium. ये बनता है. और जो स्पर्मोगोनियम और pycnidium है ये होता है एक स्मॉल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. और इसकी जो ओपनिंग है दैट इज बाय अ स्मॉल स्पोर जिसको कहा जाता है ostiole. So in this picture we can see here this is the spermogonium or pycnidium of Puccinia. ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. इसकी जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है ostiole. दिस ओपनिंग इज नोन एज ostiole. और इसी में बनते हैं नेक्स्ट स्टेज स्पोर जिनको कहा जाता है pycniospores और स्पर्मेशिया. और ये जो ostiole है it is guarded by at its edge by long delicate sterile hyphae. इसके जो edges हैं ये कवर होते हैं long delicate sterile hyphae से जिनको कहा जाता है periphysis. So they are protective structures in this pycnidium. दो तरह के हाइफे होते हैं pycnidium में. लॉन्ग डेलिकेट रिसेप्टिव हाइफे दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ostiole, जो ostiole के बाहर निकलते हैं. और दूसरे होते हैं सिलेंडर शॉर्ट वर्टिकल यूनिन्यूक्लिएट हाइफे विच अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ स्पर्मोगोनियम एंड दीज आर नोन एज स्पर्मेशियल हाइफे. सो दो तरह के हाइफे इसमें बनते हैं. एक होते हैं लंबे जो कि ostiole से बाहर निकलते हैं, एंड सेकेंड टाइप जो बेस से अराइज होते हैं बट दे विल नॉट कम आउट ऑफ द this ostiole और इनको कहा जाता है spermatial hyphae. So this is the developmental stage of this spermatium or pycniospores. So ये जो स्ट्रक्चर है यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जिसके टिप्स में स्पर्मेशिया बनते हैं उसको कहा जाता है spermatiophore, and at its tip it will form spermatium. इसके टिप्स में बनते हैं spermatium. एंड ये दोनों तरह के हैं. जैसे प्लस स्ट्रेन का होगा, जो प्लस स्ट्रेन का हाइफा है दैट विल फॉर्म द प्लस स्ट्रेन स्पर्मेशियम, एंड द माइनस स्ट्रेन द हाइफा विल फॉर्म माइनस स्ट्रेन स्पर्मेशियम. बट जो रिसेप्टिव हाइफा होगा दिस इज द रिसेप्टिव हाइफा, इट इज़ ऑफ अपोजिट स्ट्रेन. सो सपोज दिस इज द प्लस स्ट्रेन spermatium, it will come in contact with the receptive hypha of minus strain. So this is the minus strain receptive hypha, and this spermatium is of plus strain, and it will come in contact with each other. So it bears spermatia or pycniospore at its tip, and the spermatia होते हैं unicellular small thin walled cells that we can see in this picture. और एक जो pycnidium है it will give rise to only प्लस और माइनस स्ट्रेन स्पर्मेशियम. एक जो pycnidium है उसमें या तो प्लस स्ट्रेन का स्पर्मेशियम बनेगा या फिर बनेगा उसमें माइनस स्ट्रेन का स्पर्मेशियम. सो द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेशियम और pycniospore इसी को कहा जाता है ऑफ वन स्ट्रेन टू द pycnidium containing receptive hypha of opposite strain is affected by insects. सो ये जो स्पर्मेशियम है या फिर जो pycniospores हैं ये कैरी किए जाते हैं रिसेप्टिव हाइफा तक थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट इसको ले जाते हैं रिसेप्टिव हाइफा तक ऑफ अपोजिट स्ट्रेन. सो ये जो गार्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है पैराफाइसिस. और ये जो स्पर्मेशियोफोर्स हैं इनके टिप्स में बनते हैं स्पोर जिनको कहा जाता है pycniospores, और स्पर्मेशियम भी बोलते हैं इनको. एंड इट ऑल्सो कंटेन दीज लॉन्ग हाइफाज विच आर नोन एज रिसेप्टिव हाइफाज. रिसेप्टिव हाइफा भी कहा जाता है. सो एक स्ट्रेन का जो pycniospore है it is carried to this receptive hypha. Suppose this is the plus strain Basidiospore, it is carried to the receptive hypha through the agency of insects. जो insect हैं वो carry करते हैं इसको receptive hypha तक. So the spermatia of one strain when comes in contact with the tip of receptive hypha of opposite strain leads to the dissolution of intervening wall. जैसे ही ये बेसिडियोस्पोर इसके कांटेक्ट में आता है
रिसेप्टिव हाइफा के कांटेक्ट में आता है, इसकी वॉल जो कॉमन वॉल होती है इन दोनों के बीच में वो डिज़ोल्व हो जाती है और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो फ्यूज़ हो जाता है एंड गेट एक्सचेंज्ड। सो द डिसोल्यूशन ऑफ इंटरवेनिंग वॉल, इन दोनों के बीच की जो वॉल है, द वॉल विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो डिज़ोल्व हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाई कैरियन। सो इसके फ्यूजन के रिजल्ट से डाई कैरियन बनता है। मीन्स जो बेसिडियोस जो पिकनियोस्पोर्स का न्यूक्लियस है दैट गेट शिफ्टेड टू द रिसेप्टिव हाइफा, और यहाँ पे दो न्यूक्लियाई साथ साइमल्टेनियसली they comes in contact with each other that results in the formation of a dikaryon. So the two nuclei in common protoplasm without fusion, fusion नहीं होता है, and this stage is known as dikaryotization. So the pair of nuclei of opposite strain is called dikaryon. जो opposite strains का पेयर है न्यूक्लियाई का उसको डाइकैरियन कहा जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Then next stage, the final stage is the acidial stage on Barbaris, और ये जो stage बनती है it is found on the lower surface of Barbaris leaf. So acidia bearing acidiospores produces in Barbaris which infects the wheat plant. Again जो acidiospores हैं they are responsible for the infection in wheat plant, that is the primary host. So during favorable conditions जो डेवलपमेंट ऑफ पिकनीडिया है उसी टाइम पे कुछ हाइफा प्लस एंड माइनस स्ट्रेन गोज डाउनवर्ड। जैसे पिकनीडिया बनता है उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली देयर आर सम हाइफा प्लस एंड माइनस स्ट्रेन जो कि मूव करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स लोअर सरफेस ऑफ द बर्बेरिस लीफ, टूवर्ड द लोअर साइड ऑफ द लीफ एंड फॉर्म्स रिस्पेक्टिव इमेच्योर एशिया। एशिया इज अ प्लूरल वर्ड, और प्रोटोएशियम और एशियल प्राइमोडियम जो कि एसिडियल कप बनाएंगे बाद में टूवर्ड्स द लोअर लीफ सरफेस। सो दिस इज द लोअर लीफ सरफेस, और ये जो पैचेस हैं ये शो कर रहे हैं यहाँ पे एशिया को, एसिडियल कप्स हैं एक सिंगल, और ये बनते हैं जब पिकनीडियम बन रहा होता है अपर लीफ सरफेस पे तो कुछ प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफा दे मूव्स डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन की तरफ, लोअर लीव्स के सरफेस की तरफ मूव करते हैं एंड दे गिव राइज टू दिस नेक्स्ट स्टेज जो स्ट्रक्चर दैट इज एसिडियल कप ऑन द लोअर लीफ सरफेस ऑफ बर्बेरिस। इसको कहा जाता है इनिशियली इमेच्योर एशिया और प्रोटोएशियम और एशियल प्राइमोडियम इन द इनिशियल डेवलपमेंटल stages of this acidial cup. So the nuclei of spermatia moves downward. जो spermatia के न्यूक्लियाई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं थ्रू सेप्टल पोर्स एंड रीच द बेसल सेल ऑफ प्रोटोएशिया, और प्रोटोएशिया के बेसल सेल तक पहुंचते हैं और वहाँ पे ये बनाते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा। वहाँ पे बनता है डाइकैरियोटिक, जो स्पर्मेशिया है उसका जो बेसल सेल है वो वहाँ से न्यूक्लियाई मूव करता है टूवर्ड द बेसल सेल ऑफ प्रोटोएशिया, और वहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म दिस डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द पिक्चर शोइंग एसिडियल कप। तो ये जो एसिडियल कप बनता है ये बनता है ऑन द लोअर लीफ सरफेस ऑफ बर्बेरिस। इट इज़ अ इन्वर्टेड कप शेप स्ट्रक्चर, और ये जो स्पोर्स बनते हैं दे आर हेक्सागोनल स्पोर्स दैट विल सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। इसमें जैसे पिकनीडियम अपर सरफेस पे बनते हैं, सो कुछ हाइफे प्लस और माइनस स्ट्रेन के दे मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पे स्पर्मेशिया के एक न्यूक्लियाई दैट गेट शिफ्टेड टू द बेसल सेल ऑफ दिस एसिडियम। वहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई they comes in contact with each other, that is one is a plus strain, other is of minus strain, and this results in the formation of dikaryotic structure. These binucleate Eschiospore mother cell later increases in length and cut off daughter cells, और ये जो binucleate cell बनता है this is the Eschiospore mother cell, ये है Eschiospore mother cell, ये divide करेगा, redivide करेगा, and it will give rise to the next stage spore that is Eschiospores.
Then they again divide to form two unequal binucleate cells. दो unequal binucleate cells बनेंगे. Larger one becomes Ichthyospore. जो larger size का cell है वो Ichthyospore बनेगा. और जो smaller cell है there becomes sterile disjunctor or intercalary cell. In this way, a long chain of Ichthyospores and disjunctor is formed in basipetal manner. Basipetal manner means जो oldest होगा that is at the apex और जो youngest है that is at the base. यहाँ पे हम देख सकते हैं initially जो Ichthyospore mother cell है ये divide करेगा to form two cells. One is of larger size, other is of smaller size. जो large size का cell है वो बनाएगा Ichthyospore और जो small size का cell है that it becomes disjunctor cell और intercalary cell. इसी तरह से डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ चेन ऑफ Ichthyospores. एंड वी कैन सी हियर दिस, ये जो Ichthyospores होते हैं दे आर समवट हेक्सागोनल इन शेप. और इसका जो फॉर्मेशन का मैनर है दैट इज बेसिपिटल मैनर, विच मीन्स जो ओल्डेस्ट होता है दैट इज एट द एपेक्स एंड यंगेस्ट इज एट द बेस. सो Ichthyospores दे आर यूनिसेलुलर, थिन वॉल्ड होते हैं, येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं एंड दे आर बाइन्यूक्लियर स्ट्रक्चर. इनिशियली दे आर पॉलीहेड्रल, लेटर ऑन दे बिकम्स स्फेरिकल. इनिशियली पॉलीहेड्रल होते हैं, somewhat hexagonal in shape, but later on they become spherical in shape. Then mature ischium is filled with chains of Ichthyospores and disjunctor and appear as a cup-shaped structure. So जो mature ischium है इसमें बहुत सारी chains हम देख सकते हैं यहाँ पे Ichthyospores की, and it looks like a cup-shaped structure, inverted cup-shaped structure. And these Ichthyospores are disseminated by wind, और ये कैरी किए जाते हैं विंड के द्वारा. विंड विल कैरी इट इनटू द व्हीट फील्ड्स और वहाँ पे व्हीट के लीफ सर्फेसिस पे ये ग्रो करते हैं एंड कॉजेज इन्फेक्शन इन द व्हीट प्लांट. और जो व्हीट प्लांट है दैट इज़ द प्राइमरी होस्ट जहाँ पे डाइकैरियोफेज कंप्लीट होता है. सो डिप्लोफेज इज कंप्लीटेड इन व्हीट प्लांट और प्राइमरी होस्ट. So this is the summary that we will discuss. So first stage that we know, जो Ichthyospores और Ichthyospores हैं ये जर्मिनेट करते हैं व्हीट प्लांट पे और लेटर ऑन जो डाइकैरियोटिक हाइफे हैं वो बनाते हैं नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं यूरिडिया के अंदर एंड दे विल प्रोड्यूस यूरिडिया विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स दैट इज यूरिडियोस्पोर्स. और ये जो यूरिडियोस्पोर्स हैं हमने पढ़ा था दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन द healthy wheat plants again, or 5 to 6 crops of Eurydiyospores are produced in one cropping season. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. बट जैसे ही wheat अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला होता है दैट इज जो सीजनल चेंजेस होते हैं that triggers the formation of next stage spore that is tilia. So Euridia are replaced by tilia और tilia टीलिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स जिनको कहा जाता है टील्यूटोस्पोर्स. टीलिया और टील्यूटोसोरस भी कहा जाता है. इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स विच आर बाइसेल्ड स्ट्रक्चर. और इस पे जो डाइकैरियोफेज है वो कंप्लीट हो जाता है. देयर अकर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ प्लस और माइनस स्ट्रेन सो इट बिकम्स डिप्लॉयड. सो यूरिडोसोरस की जगह पे इसमें बनते हैं टील्यूटोसोरस और यूरिडोस्पोर्स की जगह इसमें बनते हैं टील्यूटोस्पोर. एंड दीज स्पोर्स गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट. सो इसीलिए इस डिजीज़ का नाम है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट. देन इन नेक्स्ट स्टेज जो टील्यूटोस्पोर्स हैं ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं. ये जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोमाइसीलिया विच विल एक्ट एज बेसीडियम और इसके अंदर बनते हैं नेक्स्ट स्टेज स्पोर जिनको कहा था बेसीडियोस्पोर्स ऑन बेसीडियम. और ये जो बेसीडियोस्पोर्स हैं ये ग्रो करते हैं या तो जो डेड डिकेइंग स्ट्रॉ व्हीट है या फिर सॉइल सरफेस के ऊपर. देन एट स्टेज 4 इज़ ऑन बर्बेरी प्लांट. सो जो बर्बेरी प्लांट है इसमें जो बेसीडियोस्पोर्स हैं अपोजिट स्ट्रेन के they germinate and form the extensive hypha with spermogonia on upper leaf surface which contains spermatia and receptive hyphae.
पिकनीडियल स्टेज जो कि अपर लीफ सरफेस पे होता है। लेटर ऑन जो न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट स्ट्रेन है दे रिमेन इन कॉमन प्रोटोप्लाज्म एंड फ्यूजन फॉर्मिंग डाइकैरियन। लेटर ऑन उसमें जब स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफे दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बनाते हैं डाइकैरियन। द नेक्स्ट इज स्टेज स्पोर, दैट इज लास्ट स्टेज स्पोर ऑन बर्बेरी इज एसिडिया। एसिडिया बियर करते हैं एसिडियोस्पोर्स, ये भी होते हैं डाइकैरियोटिक। दैट इज़ इसमें दो न्यूक्लियाई होंगे, बाइन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, एक है प्लस स्ट्रेन का एक है माइनस स्ट्रेन का, और ये बनता है लोअर लीफ सरफेस पे ऑफ बर्बेरिस प्लांट। एंड जो बर्बेरिस प्लांट पे लोअर लीफ सरफेस पे बनते हैं ये कैरी किए जाते हैं एसिडियोस्पोर थ्रू एयर्स टू द व्हीट प्लांट्स, और व्हीट प्लांट के लीफ के सरफेस के ऊपर ये ग्रो करते हैं एंड कॉजेज इन्फेक्शन इन द व्हीट प्लांट, और जिससे कि ये इन्फेक्ट करते हैं व्हीट प्लांट्स को, और दे विल फॉर्म दिस फर्स्ट स्टेज दैट इज़ यूरिडियल स्टेज ऑन द व्हीट प्लांट. I have taken this from this website. It is plantsciencesforyou.com. So this was the summary of this disease causing pathogen. Next is the graphical representation of life cycle of this Puccinia. So I have discussed कि जो डाइकैरियो फेज है ये कंप्लीट होता है व्हीट प्लांट पे. So from this stage we have started जो एशियोस्पोर्स हैं ये बनते हैं लोअर बर्बेरिस लीफ सरफेस पे, और ये एशियोस्पोर्स ग्रो करते हैं व्हीट प्लांट पे. दे आर कैरिड बाय विंड टू द व्हीट प्लांट. यहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं, यूरिडोसोरस बनाएंगे, और यूरिडोसोरस प्रोड्यूस करते हैं यूरिडोस्पोर्स. एंड आई हैव डिस्कस जो यूरिडोस्पोर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन इन हेल्दी व्हीट प्लांट्स, और ये हेल्दी व्हीट प्लांट को फिर से इन्फेक्ट कर सकते हैं. सो ड्यूरिंग द life cycle of wheat 5 to 6 crops of these यूरिडोस्पोर्स are produced. और जैसे ही सीजनल चेंजेस होते हैं, मीन्स जैसे ही व्हीट प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला होता है, सो दिस यूरिडोसोरस इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट सोरस दैट इज टिल्यूटोसोरस. एंड जो टिल्यूटोसोरस है उसके अंदर बनते हैं नेक्स्ट स्टेज स्पोर जिनको कहा जाता है टिल्यूटोस्पोर्स. यूरिडोस्पोर्स आर डाइकैरियोटिक, मीन्स प्लस और माइनस स्ट्रेन के दो न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, बट टिल्यूटोस्पोर्स दे बिकम्स डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड हो जाते हैं. इट मीन्स इसमें जो दोनों स्ट्रेन के न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं. सो हेयर इज़ द टर्म यूज्ड फॉर दैट इज़ कैरियोगैमी, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन जो टिल्यूटोस्पोर्स हैं दे टाइड ओवर द टफ कंडीशंस, वो लंबे समय तक रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं. जैसे कंडीशंस फेवरेबल होती हैं सॉइल के ऊपर दे जर्मिनेट एंड दे फॉर्म द प्रोमाइसीलियम, जिसको बेसिडियम भी कहा जाता है. एंड दिस प्रोमाइसीलियम विल बियर द नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स, और नेक्स्ट स्टेज स्पोर बनने के लिए इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस दैट अंडरगोज मियोसिस होती है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई, 2 ऑफ प्लस स्ट्रेन 2 ऑफ माइनस स्ट्रेन. और जो एक बेसिडियम है और प्रोमाइसीलियम है उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 2 of plus strain 2 of minus strain, and that results in the formation of 4 basidiospores, that is 2 of plus strain 2 of minus strain. और ये जो basidiospores हैं they are carried to the barbaris plant on the upper leaf surface, वहाँ पे ये germinate करते हैं. and एक ही लीफ पे दोनों स्ट्रेन्स के basidiospore germinate करते हैं. one is of plus strain and other is of minus strain. और ये जो पिकनीडियम है प्लस स्ट्रेन का ये प्रोड्यूस करता है प्लस स्ट्रेन्स पिकनियोस्पोर्स एंड रिसेप्टिव हाइफा ऑफ माइनस स्ट्रेन. तो ये दोनों फ्यूज़ करेंगे एंड इन दिस केस प्लस स्ट्रेन्स परमेशिया विल फ्यूज़ विद द रिसेप्टिव हाइफा ऑफ माइनस स्ट्रेन, दोनों फ्यूज़ करेंगे एंड दे विल फॉर्म द डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ वन इज़ अ प्लस स्ट्रेन अदर इज़ अ माइनस स्ट्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन and it results in the formation of dikaryotic mycelium. और lower leaf surface पे ये जो dikaryotic mycelium है it will give rise to ascidial cup, और ये जो ascidial cups हैं ये produce करते हैं next stage spores जिनको कहा जाता है asciospores, और asciospores will cause infection in the wheat plant. So this is all about the graphical representation of life cycle of Puccinia.
So this is all about the today's discussion. Hope you will get some important information from this clip. And if you have any queries and questions and any suggestions, you can give it in the comment section. Thank you. Have a great day.